Now the blood consists of plasma and corpuscles. Plasma 60%, corpuscles 40%. Corpuscles or cells. They are erythrocytes, leukocytes, and thrombocytes. Erythrocytes, leukocytes, thrombocytes. Erythrocytes also called as RBCs, leukocytes WBCs, and thrombocytes are platelets. Leukocytes are further of two types: agranulocytes या फिर granulocytes. जो agranulocytes है, these are further of two types: lymphocytes and monocytes. Granulocytes are of three types: acidophiles, जहां पे एसिडिक ग्रेन्यूल्स है; बेसोफाइल्स, जहां पे बेसिक ग्रेन्यूल्स है; या फिर न्यूट्रोफाइल्स, जहां पे न्यूट्रल ग्रेन्यूल्स है। उसके बाद है प्लाज्मा. प्लाज्मा कंसिस्ट्स ऑफ वाटर. मेन तो है इसका कंपोनेंट वाटर. देन प्लाज्मा प्रोटीन्स such as albumins, globulins, fibrinogen, that is plasma proteins. उसके बाद है nitrogenous wastes such as urea, uric acid, creatinine, और क्या है? Then there is glucose, then there is amino acids, then there is hormones, then there are minerals, etc. It is the component of plasma. प्लाज्मा माइनस कॉर्पसल्स, ये चलो वो बाद में करवाते हैं, पहले हम ये लिखते हैं. ठीक है जी. तो वाटर प्रोवाइड्स, पहले फंक्शंस ऑफ वाटर. मम्मी एक मिनट ये लिख लेना. हाँ लिख लो लिख लो. पीछे
ठीक है, लिख लिया। पहले हम आ जाइए प्लाज्मा पे। प्लाज्मा इज स्लाइटली एल्कलाइन नॉन लिविंग फ्लूइड। प्लाज्मा इज slightly alkaline non-living fluid. Plasma helps in retaining fluid in blood. अगर प्लाज्मा ना हो तो फ्लूइडिटी नहीं होगी। प्लाज्मा helps in retention of या retaining of fluid in blood. Second है it maintains pH of blood. It maintains pH of blood. Third है helps in transport of various substances from one part of the body to another. नेक्स्ट है हाँ कर लो It distributes heat all over the body. It distributes heat all over the body. ये तो प्लाज्मा के फंक्शंस थे। उसके बाद आ जाइए प्लाज्मा प्रोटीन्स। नेक्स्ट इज प्लाज्मा प्रोटीन्स। Plasma proteins such as fibrinogen helps in clotting of blood. Plasma proteins such as fibrinogen helps in clotting of blood. Next है albumins and globulins. Albumins and globulins maintain osmotic pressure in the maintains osmotic balance in the blood and thus helps in retaining water नेक्स्ट हमने कहा था कि CO2 मैक्सिमम प्लाज्मा से होती है, या हम मैक्सिमम तो नहीं कह सकते, बट कुछ पोर्शन ऑफ CO2 इट इज ट्रांसपोर्टेड डिसॉल्व्ड इन प्लाज्मा, इजंट इट? ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अच्छा ये तो प्लाज्मा का नहीं, एक मिनट रुक जाओ, अभी हम प्लाज्मा प्रोटीन्स की बात कर रहे हैं। ये एल्ब्यूमिन्स एंड ग्लोब्युलिन्स हो गया। नेक्स्ट पॉइंट एक और इसी में कर लो, प्लाज्मा प्रोटीन्स की ही। प्लाज्मा प्रोटीन्स हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच ऑफ द ब्लड। हेल्प्स इन मेंटेनिंग पीएच ऑफ द ब्लड। ठीक है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन्स का जो है ये फंक्शन है। नेक्स्ट आ जाइए, ये तो नाइट्रोजिनस वेस्ट है, ये तो प्लाज्मा में से ट्रांसपोर्ट होके किडनी में जाएंगे। नेक्स्ट आ जाइए ग्लूकोज। नेक्स्ट इज ग्लूकोज। ग्लूकोज इज कॉल्ड एज ब्लड शुगर and is the substrate of respiration.
and is the substrate of respiration for all the body cells. For all the body cells. इसलिए ग्लूकोज जो है उसको कौन ट्रांसपोर्ट कर रहा है? ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह। ठीक है, तो ये मेन फंक्शंस है प्लाज्मा के। नेक्स्ट आ जाइए कॉर्पसल्स। नेक्स्ट अगला कपड़ा हम दो मैं तो सुखी ना साफ करना। बेटा ये है इन्यूक्लिएटेड आरबीसी, that is without nucleus. This is RBC. This is lymphocyte with oval nucleus. Bean shaped nucleus या kidney shaped. This is monocyte. Then there is bilobed nucleus. Then there is bilobed nucleus in, acidophiles. S-shaped nucleus in basophiles. And multi-lobed nucleus in neutrophils. Multi-lobed nucleus in neutrophils. इस तरह का भी हो सकता है न्यूट्रोफाइल्स में, या फिर this is multi-lobe. This is also multi-lobed nucleus in neutrophils. और उसके बाद fragments of cells. These are platelets. ये fragments है. These are platelets. तो पहले आ जाइए आरबीसीज। ठीक है, आरबीसीज रेड ब्लड सेल्स। आरबीसीज आर द स्मॉलेस्ट सेल्स इन अवर बॉडी। आरबीसीज आर द, सबसे पहले आरबीसीज आर द स्मॉलेस्ट एंड मोस्ट abundant cells in our body.
formation of RBCs is called as erythropoiesis. Is called as erythropoiesis. Which occurs in red bone marrow, which occurs in red bone marrow, yellow bone marrow, liver, spleen, etc. मैम रेड बोन मैरो और येलो बोन मैरो में डिफरेंस क्या है? बेटा रेड बोन मैरो में बहुत सारा मायोग्लोबिन इकट्ठा होता है, ऑक्सीजन स्टोर्ड होती है, ठीक है। येलो बोन मैरो में ऑक्सीजन नहीं स्टोर होती, ठीक है। और अब जब हम बोन्स करेंगे तो बोन मैरो करेंगे, उसमें और ज्यादा पता चल जाएगा, ठीक है। तो रेड बोन मैरो मैंने बताया मेनली रेड बोन मैरो में आरबीसीज बनते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आ जाइए, ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट करो। ड्यूरिंग ऑक्सीजन डेफिशिएंसी, comma, the kidneys secrete the hormone, the kidneys secrete the hormone erythropoietin. Kidneys secrete the hormone erythropoietin, which stimulates the bone marrow, which stimulates the bone marrow to secrete to form more of RBCs. तो टेस्ट हो गया तेरा बेटा 3 o'clock, ठीक है, 3 to 4. ठीक है जी। नेक्स्ट आ जाइए, आरबीसीज ऑफ ऑल मैमल्स, आरबीसीज ऑफ all mammals are enucleated. Except camel and llama. Except camel and llama. Double LAMA. Except camel and llama. ये क्या होता है? बेटे लामा भी एक तरह का कैमल ही होता है, बट ये अरब कंट्रीज में मिल जाता है, ठीक है। Except camel and llamas which have nucleated RBCs. Nucleated RBCs. Next point है RBCs lose their nucleus during maturation. शुरू में तो होता है but they lose their nucleus. कैमल लामा में नहीं, बाकी सब में RBCs lose their nucleus and most of the organelles during maturation, so that it contains more of hemoglobin. It contains more of hemoglobin. Next है lifespan of RBCs 120 days. Lifespan of RBCs 120 days. Next है RBCs are killed by
reticuloendothelial cells. Reticuloendothelial cells. Reticulo, reticulo. Reticuloendothelial cells. ये हमारी बॉडी में कई जगह मिलते हैं. Reticuloendothelial cells and are disposed of, and the dead RBCs are disposed of by spleen. And the dead RBCs are disposed of by spleen. ठीक है बच्चे, हीमोग्लोबिन के बारे में पता ही है आपको. ठीक है. आरबीसीज आर, नेक्स्ट पॉइंट एक और लिख लो, आरबीसीज आर रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन. ये लिखवाया था, देख लो. आरबीसीज आर रेड इन कलर ड्यू टू हीमोग्लोबिन. ठीक है. नेक्स्ट एक पॉइंट लिख लीजिए, विटामिन B12 is required for the maturation of RBCs. Vitamin B12 and folic acid भी लिख लो, and folic acid are required for the maturation of RBCs. ठीक है बच्चों. दिस इज आरबीसीज. डेफिशिएंसी, नेक्स्ट पॉइंट कर लीजिए, डेफिशिएंसीज ऑफ हीमोग्लोबिन. डेफिशिएंसी ऑफ हीमोग्लोबिन इन ब्लड is called as anemia. Is called as anemia. ANAEMIA, anemia. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट एक और आ जाइए, फंक्शंस ऑफ आरबीसीज. फंक्शंस ऑफ आरबीसीज. हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन. सेकेंड पॉइंट है, ऑन इट्स सरफेस RBCs have antigens. RBCs have antigens which determine the blood group. Of the person. नेक्स्ट आ जाता है बेटा ल्यूकोसाइट्स. नेक्स्ट इज ल्यूकोसाइट्स, दैट इज WBCs. These are larger than RBCs and platelets. These are larger than RBCs and platelets. These are nucleated. These are nucleated. Next point, neutrophils. Neutrophils are the smallest WBC. Neutrophils are the smallest WBC, whereas monocytes are the largest WBCs. ठीक है जी. नेक्स्ट आ जाइए, बेसोफाइल्स आर द
basophils are least in number, whereas neutrophils are maximum in number. Neutrophils are maximum in number. पहला आ जाइए lymphocytes. First is lymphocytes. इसमें फर्स्ट पॉइंट है they are non-phagocytic. They are non-phagocytic. They are of two types. They are of two types. That is B lymphocytes and T lymphocytes. B, capital B. B lymphocytes and T lymphocytes. ठीक है बेटा, इन दोनों में क्या फर्क है ये देख लें जरा फोकस कर लो ऊपर को. जो बेटा लिम्फोसाइट्स है, लिम्फोसाइट्स जो है दीज आर प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो. ठीक है, एंड मैच्योर either in bone marrow or in thymus gland. हमारी चेस्ट में होती है बेटा thymus gland. ठीक है, तो फिर दूसरा आ जाएगा those lymphocytes ध्यान से सुनो पहले, विच मैच्योर इन बोन मैरो. बोन मैरो आर बी लिम्फोसाइट्स. अब यहां पे बेटा ये बात सुनो कि इनको बी लिम्फोसाइट्स किस लिए कहते हैं. ये नहीं कि वो बी बोन मैरो में मैच्योर हो रहे हैं. इनको बी लिम्फोसाइट्स क्यों कहते हैं? Because they were first discovered in Bursa fabricus. ये बेटा एक स्ट्रक्चर होता है बर्ड्स में, Bursa fabricus in birds. इसलिए इनको बी लिम्फोसाइट्स कहते हैं क्योंकि सबसे पहले ये डिस्कवर हुए थे बर्सा फैब्रिकस में. यहां पे करो टी लिम्फोसाइट्स मैच्योर इन thymus gland. बी लिम्फोसाइट्स बोन मैरो में, टी लिम्फोसाइट्स thymus gland. ठीक है जी, यहां पे देखो, ध्यान से देखो, बी लिम्फोसाइट्स व्हेन एक्टिवेटेड, जब ये एक्टिवेट होते हैं तो बी लिम्फोसाइट्स दे डिवाइड, दे फॉर्म प्लाज्मा सेल्स एंड प्लाज्मा सेल्स फॉर्म एंटीबॉडीज.
और एंटीबॉडीज का फंक्शन आपको पता है, माइक्रोब्स को मारती है। उसके बाद टी लिम्फोसाइट्स, टी लिम्फोसाइट्स themselves kills antigens, kill antigens। बी लिम्फोसाइट्स खुद नहीं कुछ करते, वो एंटीबॉडीज बनाते हैं जो एंटीजेंस को या माइक्रोब्स को मारते हैं, जबकि टी लिम्फोसाइट्स themselves kill antigens। हो गया बच्चों? लाइफ स्पैन बस हम खत्म कर रहे हैं 5-7 मिनट में, बस ज्यादा टाइम नहीं लगाएंगे, थको मत। मेरा भी मुंह बोल बोल के थक गया। नहीं थक नहीं मैम, बैक बहुत दर्द करने लग गया। बैक दर्द कर रही है? वो तुम्हारी वो कहाँ गई चेयर? मैं वो उस तरफ थी इसलिए मैं उस पर चेयर पे बैठती, मेरी बैक अच्छा बहुत दर्द हाँ, उधर करती है। कमरे में है चेयर, तो चलो कोई बात नहीं, बस हम थोड़ा सा, ठीक है। लाइफ स्पैन ऑफ लिम्फोसाइट्स फ्यू डेज टू many years, few days to many years। फिर उसके बाद मोनोसाइट्स, मोनोसाइट्स दे आर फैगोसिटिक। फैगोसिटिक पता है ना बच्चे क्या होता है? यस मैम, दो फैगोसिटिक होता है किसी को पकड़ के खा जाना, है ना, माइक्रोब्स को पकड़ के खा जाना। They are strong phagocytes। In tissues, they fuse to form macrophages। In tissues अगर ब्लड में है तब तो क्या है, मोनोसाइट्स है, बट अगर टिश्यूज में चले गए, in tissues the monocytes fuse to form macrophages। उसके बाद है एसिडोफाइल्स। एसिडोफाइल्स, एसिडोफाइल्स जो है लाइफ स्पैन 4 to 5 days। नॉन फैगोसिटिक, non-phagocytic and plays minor role in immunity, plays minor role in immunity। उसके बाद है बेसोफाइल्स। लाइफ स्पैन फ्यू आवर्स, कुछ घंटे ही। बेसोफाइल्स lifespan few hours। They secrete histamine, they secrete histamine and heparin, HEPARIN। और हिस्टामिन क्या करता है, एलर्जीज कॉज करता है ना, हिस्टामिन एंड हेपेरिन। These are secreted during allergic reactions, या these play role in allergic reactions, these play role in allergic reactions। और लास्ट है न्यूट्रोफाइल्स। लास्ट इज न्यूट्रोफाइल्स। लाइफ स्पैन few hours to 1 week, few hours to 1 week। strong phagocytes, strong phagocytes। ठीक है जी। और लास्ट में आ जाते हैं ब्लड प्लेटलेट्स, ब्लड प्लेटलेट्स और थ्रोम्बोसाइट्स। These are non-nucleated fragments of
नॉन न्यूक्लिएटेड फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स। बोन मैरो में बहुत बड़े बड़े सेल्स हैं, उनके फ्रेगमेंट्स है ये। फ्रेगमेंट्स ऑफ लार्ज बोन मैरो सेल्स कॉल्ड एज megakaryocytes। megakaryocytes। Lifespan 1 week। lifespan 1 week। फंक्शन है क्लॉटिंग ऑफ ब्लड। दे सिक्रीट प्लेटलेट फैक्टर्स। they secrete platelet factors which helps in clotting of blood। ठीक है जी। सो इन जनरल जो है ये आपका क्या हमने करवा दिया ब्लड के बारे में। एक अब यहाँ पे स्टार डाल के पॉइंट्स लिख लो। बाइल पिगमेंट्स आर फॉर्म्ड। Bile pigments are formed by the breakdown of hemoglobin। Bile pigments are formed by the breakdown of hemoglobin in liver। in the liver। Amphibian RBCs are largest RBCs। Amphibian RBCs are largest RBCs in vertebrates। Smallest RBCs are found in musk deer। Smallest RBCs are found in musk deer। MUSK musk deer DEER। ठीक है। नेक्स्ट है फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज हीमोपायोसिस। फॉर्मेशन ऑफ ब्लड इज कॉल्ड एज hemopoiesis। PIOSIS। नेक्स्ट है TLC। TLC है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट। नेक्स्ट है DLC डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट। डिफरेंशियल का मतलब होता है टोटल ल्यूकोसाइट काउंट में तो इतने WBCs है, डिफरेंशियल में बताएंगे एसिडोफाइल्स कितने हैं, बेसोफाइल्स कितने हैं, न्यूट्रोफाइल्स कितने हैं। ठीक है। नेक्स्ट है एक आ जाती है बार बॉडी। BARR बार बॉडी। इन ह्यूमन फीमेल्स some neutrophils possess a small spherical lobe attached to their nucleus, attached to their inside or inner surface of the nucleus, attached to the inner surface of the nucleus। This dark lobe is called as Barr body। This dark lobe is called as Barr body and represents one of the inactive X chromosome। Represents one of the inactive X chromosomes। देखो बेटा फीमेल्स में कितने एक्स क्रोमोसोम होते हैं? 2। मेल्स में कितने होते हैं? 1। एक्स क्रोमोसोम मेल्स में एक ही है, फीमेल्स में 2 है। गड़बड़ हो जाएगी क्योंकि एक्स क्रोमोसोम बहुत बड़ा क्रोमोसोम है।
ठीक है, फीमेल्स में ज्यादा जीन्स हो जाएंगे क्योंकि 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो फीमेल्स थोड़ा सा सेक्रीफाइस करती है। वो कहती है मेल्स के पास वाई क्रोमोसोम तो कुछ उसका फंक्शन नहीं होता, एक्सेप्ट वो मेलनेस डिस्क्राइब करती है कि ये मेल है सिर्फ। ठीक है, तो फीमेल्स का क्या सेक्रीफाइस है बेटा कि भी उसमें वो कहती है भी मेरे पास तो बहुत ज्यादा मेल से ज्यादा जीन्स आ गई है, 2 एक्स क्रोमोसोम है, तो वो कहती कोई बात नहीं, आई शुड बी इक्वलेंट विद द मेल, मुझे ज्यादा करके क्या करना है, सो इट्स वन ऑफ द एक्स क्रोमोसोम गेट्स नॉन फंक्शनल। ठीक है, और वो जाके कुछ न्यूट्रोफाइल्स में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है। नॉन फंक्शनल तो हर एक में, हर सेल में हो जाता है, बट न्यूट्रोफाइल्स में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ अटैच हो जाता है, जिसको हम क्या कहते हैं, बार बॉडी। ठीक है, तो बार बॉडी क्या है, इट इज द इनएक्टिव एक्स क्रोमोसोम, राइट। ठीक है, और उसके बाद एक और लिख लीजिए, डिक्रीज इन द नंबर ऑफ RBCs, एरिथ्रोसाइटोपिनिया, whereas increase in the number of RBCs is polycythemia, polycythemia, polycythemia। ठीक है जी, RBCs रेड कलर के होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन रेड क्यों है, ड्यू टू द आयरन पिगमेंट। ड्यू टू आयरन पिगमेंट। आयरन की कौन सी फॉर्म RBC में प्रेजेंट, हीमोग्लोबिन में प्रेजेंट होती है, फेरस की फेरिक, फेरस हाँ Fe2 पॉजिटिव फेरस, और फेरस इज रेड इन कलर। ठीक है, इसी के कारण हीमोग्लोबिन, अगर फेरस से फेरिक हो जाए तो ये ब्लू इज रेड कलर खत्म हो जाता है। ठीक है जी, सो इट इज दिस इज ऑल अबाउट योर ब्लड। बस अब हम थक गए, मैं भी बोल बोल के थक गई, तो जरा सा 5 मिनट का टॉपिक है ब्लड क्लॉटिंग का, वो मैं तुम्हें नेक्स्ट टाइम करवाऊंगी। ठीक है बच्चों, रेस्ट ऑल, आज जाके रेस्ट करके, अभी रेस्ट करना, और फिर उसके बाद ये थोड़ा सा रीड कर लेना सर्कुलेटरी सिस्टम। ठीक है, और कल सुबह धवन सर से अपने असाइनमेंट्स ले लेना। ठीक है, असाइनमेंट हम परसों डिस्कस करेंगे, कल हम नया चैप्टर शुरू करेंगे, दैट इज एक्सक्रीटरी सिस्टम। ठीक है जी, चलो ठीक है, ओके बेटा, थैंक यू। हाँ जी बच्चे। मैम हमें फिजिक्स का कुछ करना, मैम नॉन मेडिकल के बच्चों का मैथ्स अच्छा है, तो मैम जो फिजिक्स करते हैं तो हमारी कैलकुलेशन पीछे रह जाती है, तो वो पहले आंसर बोल देते हैं और हमें फिर कुछ समझ नहीं आता फिजिक्स का। चलो फिर हम सर से कहेंगे भी सर थोड़ा सा आराम से मेडिकल वाली गर्ल से पहले पूछना है। ठीक है, नहीं मैम पूछते हैं वो सर, पर ना उनको कैलकुलेशन अच्छी तरह से आती होती है क्योंकि उन्होंने थोड़ा मैथ्स में भी वो किया होता है, मैथ्स का किया हुआ है। हाँ, तो फिर मैम हमें थोड़ी प्रॉब्लम आ रही है फिजिक्स में। कोई बात नहीं बेटा, सर को कहेंगे कि थोड़ा सा मतलब मेडिकल वालों की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे लें। ठीक है, आपसे ज्यादा कैलकुलेशन करवा के देखें, और अगर आज सर को लगेगा भी कोई पॉइंट आपका वीक है, भी उनको आ गया है, आपको नहीं आया, तो सर वो चाहे तो एक्स्ट्रा टाइम में या किसी टाइम में आपको समझा देंगे। ठीक है ना, ये मैं सर से बात करूँ। ठीक है बच्चा, चलो बच्चा, थैंक यू, और आराम से सारी चीजें आराम से बंद करके जाओ।